is Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Today we are going to see R.D. Sharma solutions of chapter number 6, that is lines and angles. We have already completed exercise 10.1 in our online session. So today I am going to solve exercise 10.2 from R.D. Sharma book. There are altogether 12 sums, major 12 sums. We will see one by one because it have diagrams as well. So let us begin with our very first sum. So first sum is in figure 10.56. Lines L1 and L2 intersect at O, forming an angle as shown in figure. If x is equals to 45 degree, find the values of y, z and u. Now see the diagram properly. This is your line L1 and this is your line L2. Both are intersecting each other at point O. Now the angles so given are, this is y, this is x, this is u and this is z. You are given that x is equals to 45 degree. So you need to find y, z and o. Now as you can see, angle x and angle z are vertically opposite angles. Angle x and angle z are vertically opposite angles. So angle x is equals to angle z. Therefore angle z is also equals to 45 degree. Now if you can see, x and y makes a linear pair of angle. Angle x and angle y makes a linear pair of angle. So can I write angle x and angle y makes linear pair of angle. Okay, that means can I write angle x plus angle y is equals to 180. Q? Because of axiom 6.1. Okay, now you have angle x which is 45 plus angle y is equals to 180. Therefore angle y will be 180 minus 45, which is nothing but 135 degree. So ये अगर 135 डिग्री है तो एंगल y and angle u are again vertically opposite angles. So angle y is equals to angle u. ब्रैकेट्स में लिख देने का vertically opposite angles. That means what? Angle u will be, therefore angle u will be 135 degrees. So आपको जो जो एंगल्स बोले हैं, एंगल z फाइंड हो गया 45 डिग्री, एंगल y फाइंड हो गया 135 डिग्री एंड एंगल u is also 135 डिग्री. So that's the end of our first sum बच्चों. Moving ahead, sum number 2. In figure 10.57, the three coplanar lines intersect at point O, forming an angle as shown in figure. Find the values of x, y, z and u. ध्यान से देखो डायग्राम को पहले तो. Three lines intersect each other at point O. तो यहाँ पे से जा रही है एक लाइन A, B. फिर एक लाइन यहाँ पे आ रही है जिसका नाम है C और D. और फिर एक लाइन है जो है आप लोगों की EF, जो ये ऐसे कुछ पास हो रही है. तो दिस इज द पॉइंट O इंटरसेक्शन E एंड यहाँ पे है F. नाउ वन ऑफ द एंगल यहाँ पे जो दिया है वो 90 डिग्री है. फिर ये है आपका X, ये है Y, ये है Z, ये वाला है U और ये जो एंगल है वो दिया है 50 डिग्रीज. नाउ आप लोगों को फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, एंगल U. अगर आप लोग देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है. यहाँ से देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर है X, Y और Z. और ये मतलब U 50 डिग्री और 90 डिग्री एक और लाइन है. ठीक है, तो अगर आप लोग इसको मैनेज कर सकते हो तो आप लोग इजीली एंगल U को ढूंढ सकोगे एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. सो मैं लिखूंगा AOB इज अ स्ट्रेट लाइन
then what I will write, angle U plus angle FOD plus angle DOB is equals to 180 डिग्री। क्यों भाई? तो भाई एक्सियम 6.1 की वजह से। अब U अपने को फाइंड करना है, ठीक है। U फाइंड करना है, FOD जो है वो है आपका 50 डिग्री प्लस ये DOB जो है वो 90 डिग्री है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। द एंगल U विल बी, इस दोनों का टोटल 140 होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल U इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, सो इट विल बी, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस लेके जाएगा, तो एंगल U जो आया वो आपका 40 डिग्री आ गया। नाउ एज यू कैन सी दिस लाइन एंड दिस लाइन, अगर आप देखोगे तो ये और ये जो है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है दैट मींस एंगल Z इज इक्वल्स टू एंगल DOB, ठीक है। सो आई विल राइट एंगल Z एंड एंगल DOB आर ऐसे इक्वल, और लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो 90 डिग्री आ गया इज इक्वल्स टू एंगल, सॉरी आपका एंगल Z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको दो एंगल्स तो पता चल गए, U मिल गया, Z मिल गया, ठीक है, ये 90। अब देखो, अब ध्यान से आप लोगों को क्या देखना है, अब ये देखोगे ये और यहां से ये, तो ये दो एंगल का टोटल ये दो एंगल जितना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो कैन आई राइट एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल U प्लस एंगल DOF, ओके। एंड क्यों ऐसा लिखा है, बिकॉज अगेन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो एंगल X प्लस एंगल Y जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 40 प्लस 50 एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बराबर है। नाउ इफ यू कैन सी, ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें x और y आ रहा है, ठीक है। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें x, y और z का टोटल मिल रहा है, लेकिन यहां से मैं अब देखो वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स बनाऊंगा, ये और ये देखो तो एंगल x और एंगल ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं होगा, हाँ खास ध्यान रखना। तो कौन से दो पेयर ऑफ एंगल्स आपके वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, तो अगर ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, बराबर है, तो ये और ये जो हुए वो आपके वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। सो व्हाट आई विल राइट, एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल U वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल X इज इक्वल्स टू आपका आ गया 40 डिग्री। अगर एंगल X 40 है, then substituting the value of angle X in this equation will give me Y। या तो आप लोग ऐसा भी देख सकते हो, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल जो बनेगा वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है, लेकिन 40 प्लस एंगल Y is equals to 90, so angle Y is equals to 90 minus 40 and that is 50 degree। so एंगल Y मिल गया, एंगल Z मिल गया, एंगल U मिल गया और यहाँ से एंगल X भी मिल गया। so this is your sum number 2। okay बच्चों, moving ahead, sum number 3, find in figure 10.58 find the values of x, y and z। so what is given in figure, ये है आपका फिगर जिसका नाम है, ये है L1 और यहाँ से जा रहा है L2, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पे और one of the angle is given 25 degree। you need to find x, you need to find y and you need to find z। now as you can see, ठीक है, एंगल Y एंड एंगल 25 डिग्री आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ A, B, C और D, ठीक है। सो एंगल DOB
इज इक्वल्स टू एंगल AOC, क्यों भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो DOB जो है वो है एंगल Y और एंगल AOC जो है वो आ गया आपका 25 डिग्रीज. Okay, now see x plus y makes a linear pair of angle, क्योंकि ये COD या L1 is a straight line, तो मैं ऐसा लिखूंगा COD is a straight line. So angle x plus angle y is equals to 180 degree. Axiom number 6.1 से आप लोगों को स्टेटमेंट्स लिखने होंगे. एंगल x पता नहीं है लेकिन एंगल y पता है, तो एंगल x plus 25 डिग्री is equals to 180 डिग्री. तो एंगल x will be nothing but it will be 155 degrees. ये यहाँ से माइनस होगा, तो 180 minus 25 is nothing but it is 155. Now angle x and angle z, तो मैं ऐसा लिखूंगा एंगल BOC is equals to एंगल DOA. अगेन कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो BOC है आपका एंगल x एंड ये है एंगल z. एंगल x की वैल्यू है आपके पास 155 डिग्री, तो एंगल z भी क्या आ जाएगा 155. सो z की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई, x, y and z. So that was your sum number 3 बच्चों. Moving forward towards your sum number 4. If one of the four angles formed by two intersecting lines is right angle, ठीक है, then show that each, मेरे को फोर्थ पढ़ना है, मैं फिफ्थ बोल रहा था. फोर्थ सम ऐसा है, इन फिगर 10.59 फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऐसा दिया है और डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से है. ये एक है, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन है A और B, ये लाइन है E और F और एक और लाइन दी है और वो लाइन है C एंड D. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O. ठीक है, यहाँ पे दिया है 3x, यहाँ पे दिया है 2x और ये दे दिया है 5x. ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा एंगल COF इज इक्वल्स टू एंगल EOD. बराबर, एंगल COF इज इक्वल्स टू एंगल DOE. क्यों भाई साहब, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो एंगल COF है इज इक्वल्स टू हो गया DOE which is equals to 2x. Now if this is 2x, then if you can see AOB is a straight line. 3x plus 2x plus 5x will be 180. तो मैं ऐसा लिखूंगा AOB is a straight line. As it is a straight line, ठीक है, तो 3x plus 2x plus 5x is equals to 180. क्यों भाई साहब, तो भाई एक्सियम 6.1 की वजह से. अब ये एक्सियम 6.1 की जगह से आ गया, तो 3x plus 2x 5x plus 5x 10x is equals to 180. आपको पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x आप लोगों को मिल जाएगा 180 डिवाइड बाय 10 which is nothing but 18 degree. So x is equals to 18 degree. ऐसे बॉक्स में आंसर लिखो. And that's the end of sum number 4. Sum number 5, this is important क्योंकि ये राइडर है, आप लोगों को प्रूव करना है इसीलिए बोल रहा हूँ. वैसे इजी है लेकिन राइडर है इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ. If one of the four angles formed by two intersecting lines is right angle, then show that each of the four angles is a right angle. देखो यहाँ पे डायग्राम कुछ भी नहीं दिया है. तो what is given to us? Two lines are intersecting with each other. Let's say AB and CD intersect each other at point O. If one of the angle is 90 degree, let's say BOD को हम लोग 90 degree बताते हैं, then you need to prove that other remaining angles are also 90 degree. So यहाँ पे मैं लिखूंगा given. What is given to us? तो मैं ऐसा लिखूंगा line AB and CD intersect
each other at point O. One more thing is given कि one of the angle, तो let's say one of the angle is BOD. Angle BOD is equals to 90 degrees. What you need to prove is this also 90, this also 90, and this also 90. So can I write angle BOC is equals to angle COA is equals to angle DOA, और वो आप लोगों को 90 डिग्रीज प्रूव करना है. नाउ प्रूफ देखिए. Can I first of all write angle BOD and angle COA are equal? क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. तो BOD है आपका 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू COA. ठीक है, तो ये भी 90 आ गया. नाउ इफ यू कैन सी COD इज अ स्ट्रेट लाइन. As COD is a straight line, can I write angle BOD plus angle BOC is equals to 180 degree? So yes, BOD plus COB is equals to 180 degree Q by axiom 6.1. ठीक है, that means अब आपको BOD तो दे ही दिया है 90 डिग्री है, प्लस COB is equals to 180 डिग्री. तो COB जो है वो आपका आ गया 180 minus 90 and that is 90. COB लिखो चाहे BOC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. And now as this is 90, can I write angle DOA is equals to angle COB? Yes, definitely. I will write angle COB is equals to angle DOA. क्यों भाई? क्योंकि vertically opposite angles है. Okay, so COB is 90, therefore DOA is also 90, which proves that देखो angle COA 90 आ गया, angle COB 90 आ गया, and angle DOA भी 90 आ गया. Then we can write hence proved, as we have proved all three angles as 90 degree. Okay बच्चों. Sum number 6 have two major parts. Sorry, two sub major. So उसमें पहला ऐसा है, या in figure 10.60 ray AB and CD intersect at O. अब फर्स्ट जो पार्ट है उसमें ऐसा है, determine y when x is equals to 60 डिग्री. तो 6 का फर्स्ट हम लोग पहले डायग्राम देखो, कुछ ऐसा है. ये है AB और ये है C और D. ये पॉइंट है O. आपको क्या फाइंड करना है? y when x is equals to 60, और ये एंगल दे दिया है आपको 2x. ठीक है. Now if you can see, this is very easy sum. 2x plus y is equals to 180 डिग्री, और ब्रैकेट्स में लिखो एक्सियम 6.1, और फिर ऐसा भी लिखने का AOB is a straight line. ठीक है. नाउ ऐसा पूछा है कि डिटरमाइन y when x is equals to 60. So when x is equals to 60 degree, तो 2 into 60 plus y is equals to 180. 120 plus y is equals to 180 degree. So y is equals to 180 minus 120, that is 60 degree, which is very simple. Okay बच्चों. 6 का सेकेंड पार्ट ऐसा है कि डिटरमाइन x when y is equals to 40. अगेन हम लोग लिखेंगे 2x plus y is equals to 180 डिग्री, और क्यों लिखेंगे ऐसा? बिकॉज एक्सियम 6.1, और दूसरा AOB is a straight line. ठीक है. अब 2x और y क्या है? 40 है, तब x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. बराबर. तो 2x एंड ये यहाँ पे जाएगा, तो 180 minus 40 which will be 140 degrees. So 2x is equals to 140. तो x will be 140 divided by 2, that
इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। हमेशा बॉक्स में ऐसे आंसर लिख दो कि एंगल x जो है when y is equals to 40 it will be 70 degree. So that's the end of our R.D. Sharma exercise 10.2 part 1. We will be solving next 6 sums tomorrow. Thank you very much बच्चों.